Assalamu alaikum. We are live from the listener.pk's account. I hope you all are doing well. हमारा जो आज का लाइव सेशन है, it is going to be about social media trolling and the effect it has on a person's mental health or उनकी personal life. So in recent times we have seen a lot of increase in social media trolling cases and cases of cyberbullying as well. So we decided to do a live session on it to help spread awareness कि किस तरह से आपके words कैन अफेक्ट अ पर्सनस मेंटल हेल्थ और उनके ऊपर लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ सकता है उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी. सो आर टुडेज साइकोलॉजिस्ट ओवर हियर, आर टुडे स्पीकर हैज़ जॉइंड अस. वी आर गोइंग टू गेट हर इन so that we can officially start with the live session. Let's just see if we can send her invite. We have sent her invite, and as soon as she joins us, we are going to start with the session. Alright, for the people who are just joining in, our आज का जो live session it is going okay. So we have आज का जो live session it is going to be about the adverse reaction of social media trolling on a person's mental health and physical health as well, personal life specifically. So we are going to talk about that with our today's speaker, who is a psychologist. And Assalamu alaikum. Walaikum salam. Am I audible? Yes, you are. मैं ठीक, आप सुनाओ, आप कैसे हो? मैं ठीक. Thank you so much for joining me. Thank you for inviting me. Aisa, am I audible to you? Yes, So yes. let's not get into the glitch of internet. So that's why I want to make it clear before. All right. No, that's completely fine. I can actually hear you well. So we'll start with the session, shall we? Yeah, sure. All right. So Mehreen over here, she's a psychologist and she gives mental health services, including psychotherapy. She is an advocate for good emotional health, and she wants to normalize people seeking help for their struggles and mental health issues as well. So thank you again, Mehreen, for joining us. If there's anything you would like to add in your introduction, please go ahead. No, yeah, it was appropriate. All right. So We we'll just start. proceed with it. Okay. So we'll start with the session. मैंने बिल्कुल basic से start किया था for the people who are not really aware of what trolling might actually be. So how would you define social media trolling? Social media troll is basically a form of cyberbullying. The people who just come up to the comment section and add different type of derogatory comments to hurt others, to make them feel bad about any activity they are up to, about any point of view they are up to. They just come up with the such kind of the usage of words and the statements that are more inclined towards disrespect, more inclined towards hurting them, and more inclined towards like they use such words जो कि जो है मेक श्योर करते हैं वो कि अगला इंसान जो है डेफिनेटली उसको उसका जो वीक पॉइंट है उसको कहीं ना कहीं वो पिंच कर दें. इफ वो नहीं, उनको नहीं पता होता, though they don't know that what's their weak point, but they have such an analysis of that they come up with such derogatory comments. Exactly. So these are the people who are social media trolls. ठीक. तो Mehreen, why do you think people go for trolling? क्यों करते हैं trolling? अच्छा, इसके बहुत सारे रीजंस हैं ट्रोलिंग क्यों करते हैं. सम पीपल डू दैट आउट ऑफ बोर्डम. ठीक है, उनका इंटेंशन में भी किसी को हर्ट करना नहीं होता, बट वो definitely they are depicting their mental state, definitely they are depicting that from where they are coming, but their intention is not like that. Maybe they tend to use the wrong words, the harsh words, जिससे उनका अनफॉर्चुनेटली एक्सपोजर है. फिर दूसरे लोग वो आ जाते हैं जो इंटेंशनली करते हैं, एंड दे टारगेट द स्पेशली वो लोग जो मीडिया पर्सनालिटीज हैं, या जो जिनका एक से है जिनके वर्ड की ऑन द सोशल मीडिया. दे टेंड टू कम एंड निगेट देम और अपोज देम विद सच वर्ड्स कि जो है वो उनको प्रॉब्लम हो. ठीक है, कुछ उनका रिस्पॉन्स लेने के लिए, उनकी अटेंशन लेने के लिए करते हैं. कुछ तीसरी फॉर्म वो आ जाती है कि जो जिनके पास है ही वही बैगेज. ठीक है,
they actually need help, but because they talk like that. ठीक है, वो उनके अंदर इतनी ज्यादा उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस नेगेटिविटी ले ली हुई है कि दे टेंड टू देयर वर्ड बिकम सो विनोमस कि वो उसको कमेंट सेक्शन में इस तरह से, जहां उनको जहां वो कंट्रोल कर सकते हैं, जहां वो देखे नहीं जा सकते, उनको पता है जहां उनकी पकड़ नहीं होगी, वो वहां पे वो बोल देते हैं. So these are the different kind of people who are into trolling. ठीक हो गया. So is it safe जो लोग ट्रोल कर रहे थे दूसरों को, they have their own mental health struggles going on, क्योंकि we usually hear a phrase a lot that is कि खुद तो खुश रह नहीं सकते, किसी और को भी नहीं रहने देते. So do you think they have their own struggles going on as well? Yeah, I believe, and according to the researches too, they have that tendency. ठीक है, कि मतलब उनके कुछ ना कुछ definitely issues चल रहे हैं. अब देखो, एक normal सी example है कि बहुत सुनी होगी, लोगों ने बहुत सुनी होगी, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि एक आधा ग्लास पानी का पड़ा है, ठीक है, तो कुछ लोग कहेंगे आधा खाली है, कुछ लोग कहेंगे आधा भरा हुआ है. सो दिस वन स्टेटमेंट डिपिक्ट्स कि फ्रॉम वेयर द पर्सन इज टॉकिंग एंड उसका माइंडसेट क्या है. ठीक है, एक इंसान, कुछ लोगों की आदत होती है, आप उनके सामने स्पेशली हर तरह से परफेक्ट होके जाओगे ना, दे लुक फॉर द फॉल्ट इन यू. ठीक है, एक बिल्कुल एक नॉर्मल सी हमारी डेली लाइफ की एग्जांपल है, जो कि हमारी डेली नॉर्मल लाइफ है, एक जिसको हम इतना कंसीडर नहीं करते क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो हमारे शायद कभी बड़ों से आ रही होती है, फ्रेंड्स से आ रही होती है. लाइक यू आर ऑलरेडी स्टडी गोइंग टू एनी गर्ल्स पार्टी सपोज, एंड आपकी कोई एक दोस्त कहेगी ओहो अच्छा ये यूं कर लेती तो अच्छा था, मतलब ठीक है, यू कैन से दैट, बट जस्ट सी दैट वेयर द फोकस इज. Exactly. सो ये हमारी डेली लाइफ की एग्जांपल है. तो जो जो बिहाइंड द कैमरा है, हु द पीपल हु आर जस्ट कीबोर्ड वॉरियर्स, तो आप उनका definitely they are going through something, they have that mindset, they have those tendencies, that's why they come up with this kind of statement. Because एक इंसान अगर हर किसी की पोस्ट पे सपोज वो 4 सेलिब्रिटीज की पोस्ट पे कमेंट कर रहा है और उसका एक ही पैटर्न है, ठीक है, हाँ, अगर एक पे करे तो हम कह सकते हैं कि भाई उसका उससे कुछ पर्सनल डिसलाइकनेस है या पर्सनल उसका कुछ है, एक पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब तजाद है, ये कुछ है, बट एक इंसान का पैटर्न है ये, तो इट मीन्स कि दे आर कमिंग फ्रॉम सम अनफॉर्चुनेट प्लेस मेंटली. Exactly. ठीक हो गया. So, Mehereen, coming towards our topic, जो हमारा आज का टॉपिक है सोशल मीडिया ट्रोलिंग, what is the impact or the effect it has on one's mental health? सोशल मीडिया ट्रोल का जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज इट मेक्स अस फील पावरलेस. यू नो, it makes us feel कि we cannot fight that, we cannot convince them. जब एक normally हमारे से कोई point of view उसका हमसे different होता है तो हम बात रखते हैं अपनी, ठीक है, we are able to tell them. But इधर भी we are able to tell them, we can use our platform, but the point is कि वो उस कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी में होते ही नहीं है, वो ऑलरेडी they are coming for the war already. तो वो एक ऐसा कमेंट करके जाते हैं कि जिसपे हम बहुत पावरलेस फील करते हैं, एंड यू नेवर नो कि मे बी हमारा कोई ट्रिगरिंग पॉइंट हो, यू नेवर नो, मे बी वी आर गोइंग थ्रू, वी हैव गॉन थ्रू, और वी आर गोइंग थ्रू सम टफ इमोशनल स्पेस, टफ मेंटल स्पेस जो हमें हिट कर गई हो, ठीक है. सो वी नेवर नो कि आप किसी इंसान को किस तरह की कोई बात कर जाते हैं. नॉर्मली लोग अपेयरेंस पे कमेंट कर देंगे, किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे कमेंट कर देंगे. कभी कभी हम एक एक सील्ड इंफॉर्मेशन बताते हैं, एक सील्ड इंफॉर्मेशन रखते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ, बिकॉज एक है सोशल मीडिया है, वी आर बाउंड टू यूज इट इन दिस स्पेशली इन दिस सेंचुरी. हम ना भी करना चाहें तो हम एक लुक रखते हैं, ठीक है, तो वी वांट टू शेयर आवर पॉइंट ऑफ व्यू. तो अगर हम कर भी देते हैं तो इट डजंट मीन कि इट हैज टू डू विद समबडी और समबडी नॉट. तो जब ये वाली चीज होती है तो डेफिनेटली इट कैन मेक अस डिप्रेस्ड, इट गिव्स अस स्ट्रेस. ये ऐसा भी हो जाता है कि सम पीपल आर अनफॉर्चुनेटली टेंड टू मूव टूवर्ड्स सुसाइडल आइडिएशन, बिकॉज कुछ कमेंट्स इतने ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं, उतने ज्यादा बुरे तरीके से कर दिए जाते हैं, इतने रेपिटेटिवली कर दिए जाते हैं, और फिर थ्रेड शुरू हो जाते हैं.
यू नो, गेटिंग माई पॉइंट? मतलब एक इंसान को आप डील कर सकते हो, पर एक जब एक पूरी एक यू नो एक हजूम आपकी तरफ एक ही तरह के कमेंट से आ रहा हो, तो आप जितने भी स्ट्रॉन्ग नर्व्स के हो, यू फील बैड। एग्जैक्टली। ठीक है, बिकॉज आपने आपने जिस इंटेंशन से लगाया आपको नहीं पता, उनको नहीं पता। ठीक है, आपने मे बी एक नॉर्मली एम ही लगा दिया हो, ठीक है, बट पीपल टेंड टू कम अप विद सच स्ट्रॉन्ग यू नो नरेटिव्स कि आप परेशान हो जाते हो कि भाई मैंने तो ये किए नहीं था, आप खुद पे डाउट करना शुरू कर जाते हो। तो आपकी सेल्फ स्टीम डेफिनेटली अफेक्ट होती है, आप डिप्रेस भी हो सकते हो, आप स्ट्रेस्ड आउट भी हो सकते हो। एक्सट्रीम फॉर्म डेफिनेटली सुसाइडल आइडिएशन भी हैं। लोग बहुत अफेक्ट होते हैं हमारे, आपने बहुत सारे इन पाकिस्तान एंड even on international platform there are several people who have backed out from social media just because of you know सोशल मीडिया ट्रॉल। unneeded trolls. Yeah. ठीक हो गया। So ये बात होगी हमारी मेंटल हेल्थ की। कमिंग टुवर्ड्स फिजिकल हेल्थ एज वेल, तो ट्रॉलिंग का कोई इफेक्ट फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी पड़ता है? Yes, definitely. देखो, जब हम स्ट्रेस्ड हैं, हमारा जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अब उसकी मैनिफेस्टेशन हर इंसान में डिफरेंट है। अब जरूरी नहीं जो स्ट्रेस्ड है तो सारे स्ट्रेस्ड मूड खराब करके बैठेंगे, ये सारे स्ट्रेस कट ऑफ हो जाएंगे। कुछ स्ट्रेस लोग बीमार भी हो जाते हैं। ठीक है, किसी का सबसे पहला इम्पैक्ट ही बॉडी पे आता है। ठीक है, जब आप एक नॉर्मल एक हमारी एक कुछ लोगों जब एग्जाम होता है तो क्या होता है, पेट में गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। नो यू वी फील दैट हमारे यहाँ पे हमें एंग्जाइटी हो रही है तो हमें वो स्टमक में फील होती है। व्हाई इज दैट? तो हमारा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का बहुत ज्यादा जो है वो इंटर रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले बहुत मेजॉरिटी लोगों की स्लीप, यू नो, देयर स्लीप गेट अफेक्टेड। और जब उनकी नींद खराब होती है तो डेफिनेटली वो सो नहीं पाते, तो वो सो के क्या करते हैं? दे कीप ऑन थिंकिंग, overthinking and all that. Some people cut off their food, some people cut off their company, you know, they tend to shut down their all the activities. तो वो डेफिनेटली उनकी फिजिकल हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। उनका उनकी मे बी उनकी फिजिकल अपीयरेंस अफेक्ट हो जाए, मे बी उनको अल्लाह ना करे। सम पीपल यू नो have different type of emergence of different type of headaches, backaches। तो डिफरेंट तरह के उनका एक जिसका जो भी बॉडी का सेंटर है, डेफिनेटली वी ऑल हैव द डिफरेंट सेंटर्स फॉर द रिएक्शन, यू नो, अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो वो उसका इमीडिएटली एक्टिवेट होता है। ये एक हमारा एक अब एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट बिकॉज आई हैव टू कम लाइव, so definitely this is an experience. So I was having that, you know, a tingling thing कि अच्छा जी, अब वो है डेफिनेटली आपका अलग होगा, देखने वालों का अलग होगा। तो दिस इज वेरी नॉर्मल एंड वेरी नेचुरल। और जब वो जाहिर बात है जो चीज एक्सीड करती जाती है वो उतना ही ज्यादा फिर हमें अफेक्ट भी करती है। Exactly. ठीक हो गया। So coming towards the victims, who do you think are normally the victims? Social media trolling के victims celebrities के अलावा और कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, विक्टिम तो कोई भी हो सकता है ना, ठीक है, हु टेंड टू बी पब्लिक, अनफॉर्चुनेटली दे आर द विक्टिम्स। ठीक है, फिर उनकी प्रोफाइल बेशक 200 फॉलोअर्स की है या फिर उनकी प्रोफाइल 2 मिलियन फॉलोअर्स की है, ठीक है, पीपल आर नॉट स्टॉपिंग अवे। ठीक है, अगर आप जब आप ये आप एक डिसीजन लेते हो कि यू हैव टू बी पब्लिक, even the people who are not with their faces on, they are running the business profiles, ठीक है, they are running their small business, उनकी मतलब घर की चीजें हैं या बुक्स हैं या डायरीज हैं। इवन आई हैव केम यू नो अलोंग सच कमेंट्स उनके कमेंट सेक्शन में। मतलब आप एक बुक पे भी कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, यू आर जस्ट कमेंटिंग ऑन अ बुक, अ डेरोगेटरी कमेंट ऑन अ बुक। उसकी तो ना शक्ल है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम है कि आपने शक्लों पे कमेंट करना है, आपको प्रॉब्लम है आपने अपीयरेंस पे कमेंट करना है, आपको प्रॉब्लम, वो तो बोल भी नहीं रही ना, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। सो द एंड प्राइवेट प्रोफाइल्स की भी उनके भी डीएम्स भरे हैं ट्रोलिंग से। अगर किसी की डीपी दिख रही है तो किसी ने कुछ अपना प्रोफाइल में बायो में कुछ लगा दिया है तो people aren't stopping, they just need a reason। ठीक है, कुछ हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि वो इस तरह के लोगों को करेंगे। डेफिनेटली जो पब्लिक फेसेस हैं, हमारे ब्लॉगर्स हैं, हमारे सेलिब्रिटीज हैं, हमारे जो हैं प्रोफेशनल प्रोफाइल्स हैं जो
हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स हैं, जो भी हैं, मतलब वो तो डेफिनेटली वो तो बेचारे शिकार हैं ही अनफॉर्चुनेटली, बट जो एक आम आवाम है या आम पब्लिक है, उनके भी डीएम्स खाली नहीं है. मतलब पीपल टेंड टू ड्रॉप इन इफ यू आर नॉट रिप्लाइंग देम टू देयर एनी मैसेज जिसका कोई तुक भी नहीं है. दे टेंड टू बी अजीब से आपको कमेंट्स और अजीब से आपको बात करना शुरू कर देंगे. सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रोलिंग. So we ठीक हो गया. cannot, identify and put the thing in a glass कि इस तरह की चीज होगी तो वो ट्रोल करेंगे. उनको बस विक्टिम चाहिए कोई भी. ठीक हो गया. सो अनदर पैटर्न व्हिच वी यूजुअली सी, लिमिटेड नहीं है किसी एज को लेकर या पब्लिक फिगर्स को लेकर. जैसे आपने कहा कि कोई भी पब्लिक प्रोफाइल के साथ है, उसको ट्रोलिंग से दे हैव टू बी, दे आर बीइंग अफेक्टेड बाय इट. तो हम इसमें ये देखें कि एज पे लिमिटेड नहीं है. आई हैव लिटरली सीन किड्स बीइंग ट्रोल्ड ऑन सोशल मीडिया. आपके बच्चे बोलना लेट स्टार्ट कर रहे हैं सेलिब्रिटीज के या किसी भी पब्लिक फिगर के, दे स्टार्ट talking about them. या फिर a child of 11 years old, if they're putting on makeup, how does that concern anyone else? जब उनके पेरेंट्स को कोई इशू नहीं है, लेकिन people won't stop trolling. तो बच्चों के ऊपर भी they won't stop. So how would you comment on that? कि they're not limiting it to some specific people, it's everywhere. Again, maybe my words will get repeated, but the thing is कि उनकी मेंटल कैपेसिटी ही इतनी है ना. अब हम अगर चाहें कि sorry if I may sound offensive to somebody, but the thing is I want to make it, I want to educate people कि we have to increase our mental capacity. कि ठीक है, हमें perception taking learn करनी है. ठीक है, जरूरी नहीं, कब एक घर में दो बच्चे सेम नहीं होते. ठीक है, जो बैठ के लिख रहा है, क्या उसका बहन भाई उसकी तरह का है या उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी तरह के हैं? नहीं है. तो हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग somebody जिससे आपका न लेना एक न देना दो, बट you are, you want them to be like you, to be according to your thoughts, how they can be. ठीक है, तो यहाँ पे वही सोच डिपिक्ट होती है जब वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं. ठीक है, तो वो डेफिनेटली दे आर इन अ टफ मेंटल स्पेस एज वेल. उनका थॉट पैटर्न ही ऐसा हो गया हुआ है कि उनको हर बंदे को कंट्रोल करना है. उनको हर बंदे हर इंसान उनको चाहिए वो उनसे अग्री करे. ठीक है, सो एक कलेक्टिव लेवल पे हमारी टॉलरेंस भी बहुत कम हो गई हुई है कि वी जस्ट वांट टू कंट्रोल एवरीबडी. हम चाह रहे हैं, अगर एक इंसान ने, अब सपोज वी आर टॉकिंग एंड समबडी इज नॉट एग्रीइंग, तो उसको गुस्सा आ सकता है हम पे. ठीक है, एंड वो इन अ रिएक्शन हमें एक ट्रोलिंग कमेंट दे सकता है. ठीक है, अब वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है या वो हमारी बात है. यू हैव द राइट टू एग्री और डिसएग्री, बट द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज वेरी नेसेसरी. बहुत से ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं जिनका आपको लिटरली दिल करता है कि अगर उन्होंने आपसे मतलब कॉन्फ्लिक्ट में हैं वो आपसे, या वो अग्री नहीं करते, तो आप उनकी बात सुने कि मतलब व्हाट दे हैव न्यू. ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं, बट वो बड़े कम है अनफॉर्चुनेटली. बट people are, I don't know, due to what XYZ reasons. Definitely there are the reasons, but they don't care actually. ठीक है, they don't want to empathize. They know that it will hurt, but they don't want to empathize. ठीक हो गया. तो मेरीन, अब आ जाते हैं सोसाइटी के रोल की तरफ. आपका रोल, मेरा रोल, कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी, व्हाट कैन वी डू टू हेल्प? एक्चुअली द प्रॉब्लम इज इन सोसाइटी. ठीक है, जो एक बंदा आपको जो इस वक्त कीबोर्ड वॉरियर बना हुआ है, या जो आप बैठ के कमेंट कर रहा है, वो सिर्फ मेरी पिक्चर देख के तो उसके दिमाग में ये चीज नहीं आ गई ना. ठीक है, उसका पैटर्न है. उसको सिर्फ एक चीज देख के उसके दिमाग में ये चीज नहीं आई. उसके डेफिनेटली उसके इर्द गिर्द के एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, उसने वही चीज लर्न की हुई है जिसको वो अनलर्न नहीं करना चाह रहा. ठीक है, मे बी उसकी इसी फिनोमिना की, इसी बिहेवियर की इतनी ज्यादा रीइंफोर्समेंट हो चुकी हुई है कि उसको वो गलत लगता ही नहीं है. सो द थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम. ठीक है, the community in which you are living, the people with whom you are interacting.
जब हम किसी एक दोस्त को इस वजह से बताऊं, अब इसके दो तरीके हैं। कभी हम कुछ लोगों को ना इग्नोर करते रहते हैं कि अच्छा आप इसको इग्नोर कर दो, इसको क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, इसको या हम इसको अगर जवाब देंगे तो ये इसको प्रॉब्लम होगी, ये चलो ठीक है लड़ाई नहीं करते तो खैर है, तो हम वो भी बढ़ावा दे रहे होते हैं। समटाइम्स शट अप कॉल इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो जब हम ऐसे लोगों को शट अप कॉल नहीं देते ना, तो उनको लगता है हम तो बड़े फन्ने खा हैं, ठीक है, हम तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो फिर वो ये चीज कहीं भी बोलना शुरू कर देते हैं। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू मेक अ बाउंड्री एक्चुअली, स्पेसिफिकली फ्रॉम एक दो लोगों के इंटर रिलेशनशिप से लेके टू द बिगर लेवल एंड स्टेप बाय स्टेप। जब ये चीज यहाँ से शुरू होगी, जब हम इन लोगों को अकाउंटेबल करना शुरू करेंगे, तो देन there is a possibility that we can make a difference. And second thing ke digital media organizations, they need to step up. हमारे जो सोशल मीडिया के जो बेसिकली जो फॉर्म करने वाले लोग हैं, they need to take into account this thing. बहुत सारे हम सोल्यूशन इसके निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए हम मेजोरिटी कौन से लोग ट्रोल कर रहे हैं, जिनकी फेक प्रोफाइल्स हैं या जिनके अजीब गरीब नाम हैं, वो अपने, क्योंकि वो सामने से वो बात किसी को कह नहीं सकते ना, इसलिए वो क्या करते हैं, वो ये वे चूज करते हैं क्योंकि कोई उनको देख नहीं रहा। तो जब हम मतलब अकॉर्डिंग टू लिटरेचर एज वेल, एंड एक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी है, जब हम कुछ आइडेंटिफिकेशन ऐड कर देंगे ना उस आपकी प्रोफाइल के साथ, तो देन दे विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। जैसे I have came to read some article and they had the solution like attaching your identity card number or passport number with your profile, that can make a huge and big difference. Exactly. So these things, these things need to we have to actually count on these things to make a safe place. Social media basically to make it a safe place. ठीक हो गया। So coming towards healing part, so you're a victim of social media trolling. How would you suggest healing process? Cope करने के लिए, heal करने के लिए, where do these people go? डेफिनेटली देखो, सबसे पहले जो इमीडिएट रिएक्शन जो इमीडिएटली हम कर सकते हैं, दे शुड टॉक अबाउट इट। फॉर एग्जांपल, इफ अगर आप अफेक्ट हुए हो तो आपको उसके बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है, टू द पीपल हुम यू ट्रस्ट, the people who will listen to you, you should be talking about it to them. हम कभी कभी से चुप कर जाते हैं कि अच्छा इतनी सी बात है, आई एम मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ इट, तो क्या कहेंगे लोग। नो, इसको हमें यहाँ पे थोड़ा सा रोकना है, जस्ट बिकॉज ऑफ और मेंटल हेल्थ। क्योंकि फिर एक कमेंट पे हम चुप करते हैं, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना जो है ना वो पाइल अप करना शुरू कर देते हैं अपने अंदर, और फिर हम एकदम से ही क्रैश डाउन करते हैं। तो इसका सबसे पहले तो इसकी चीज ये है कि आई वुड सजेस्ट टू टॉक अबाउट इट with your friends, with the people who you trust, जिसके साथ भी आप comfortable हो, you should talk about it. Second thing is कि उनको आप रिस्पॉन्स नहीं दें, बिकॉज इनकी ना क्रेविंग होती है, दे वांट अटेंशन। जो स्पेशली ट्रोलर्स होते हैं, ये या तो इनको अटेंशन चाहिए होती है, ठीक है, इनको या फिर जो है डेफिनेटली इनको मजा आ रहा होता है किसी को हर्ट करके। इनकी पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, इनकी 3-4 तरह की पर्सनालिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे मे बी सैडिस्ट, they may be narcissistic, they have those tendencies. जरूरी नहीं कि वो completely वो हों, but they have those tendencies. So जब हम उनको इग्नोर करेंगे और जब हम उनको जवाब नहीं देंगे, because they are starving for their attention, तो जब हम वो चीज नहीं करेंगे तो it may help that actually वो जिसको ट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। एक हल इसका ये है। दूसरा ये है कि अगर हम उनको नहीं करते, कि ये चीज भी आती है, अगर हम उनको जवाब नहीं देते, तो वो मजीद एक स्टेप आप किसी बड़े कमेंट के साथ आते हैं जो कि ज्यादा हर्टिंग होता है। तो फिर अगेन ये तो उनको जवाब, अब बहुत सारे सेलिब्रिटीज हमने देखा उनको काउंटर करना शुरू कर दिया, जवाब देना शुरू कर दिया। सो अगेन बोथ द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू योर विल यू कैन डू। You can choose to ignore them and you can choose to give them a shut up call. It's up to you. Both things are necessary. तीसरी बात क्या है कि हम डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं और लेनी चाहिए। जब हमें पता चले, देखो प्रोफेशनल, अनफॉर्चुनेटली हमने साइकोलॉजिस्ट का रोल सिर्फ जो है ना उसको हमने लिंक अप कर दिया है कि बहुत बड़ा कोई मेंटल हेल्थ इशू होगा, ठीक है, किसी बंदे के ऊपर हम कोई उसको डायग्नोसिस दे सकेंगे तो ही वो मेंटल हेल्थ इशू है उसका।
हम अगर कोई आपके पास साइको एजुकेशन के लिए भी आ रहा है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ हेल्प, ठीक है. वी हैव टू नॉर्मलाइज दिस थिंग. समटाइम्स हैविंग अ परसेप्शन ऑफ सम प्रोफेशनल, हमारी बहुत सारी चीजें उसी वक्त ठीक हो जाती हैं, हमें दूसरे सेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती. सो देयर इज नथिंग हार्म इन दिस थिंग. सो जब आपको लगे कि समथिंग इज बॉदरिंग अप एंड समथिंग इज बॉटलिंग अप टू एन एक्सटेंट, तो आपको लगे कि अब आपको कोई प्रोफेशनल की जरूरत है, तो हमें मूव करना चाहिए. हम इसको बस ये कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे. अगेन, जितनी हमारी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, किसी को सर दर्द डिस्प्रिन से आराम आ जाता है और किसी का सर दर्द उसको ड्रिप लग के आराम आता है, ठीक है, फर्क है. ठीक है, कोई घर में डिस्प्रिन खा लेगा, कोई पॉन्स्टान खा लेगा, किसी को इंजेक्शन लगेगा, कोई जो है ड्रिप लगेगी, किसी को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. सबको ही सर दर्द है, ठीक है, बट इंटेंसिटी डिफरेंट है, हर किसी का कोपिंग मैकेनिज्म डिफरेंट है, हर किसी की टॉलरेंस लेवल डिफरेंट है. सो वी हैव टू केटर देम अकॉर्डिंगली. हमें उसको, अब हम ये नहीं कह सकते जिसने डिस्प्रिन से सर दर्द था, उसको डिस्प्रिन से आराम आया तो उसको कम था, ठीक है, उसको भी था. सो अगेन, वी हैव टू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स इट, टुवर्ड्स आवर ओन वेलबींग. जब हम अपनी मदद खुद नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा. सो वी हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस टैबू, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस थिंग दैट वी नीड टू हेल्प आवरसेल्फ. और स्पेशली जिस तरह से, जिस स्पीड से और जिस टाइम में हम रह रहे हैं, जितने इंक्रीज हो रहा है सोशल मीडिया ट्रोलिंग में, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स. Exactly. ठीक है, अगर किसी को डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, वो जरूर करे. दे कैन शट डाउन देयर सोशल मीडिया, दे कैन लॉग आउट ऑफ दैट, दे कैन स्पेस ले ले, ना करें बात, जरूरी नहीं है वो मतलब मीडिया पे बात ना करें, लेकिन अपने लोगों से बात जरूर करें कि उन्होंने ये क्यों किया है, उसको पाइल अप ना करें अपने अंदर. ठीक हो गया, सही हो गया. सो आई वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए. इफ देयर इज एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड इन एडिशन टू ऑल ऑफ दिस? The one point I want to talk about is कि डेफिनेटली जो प्रीच करना चाहिए एक्चुअली, वो ये कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी एक नॉर्मल पैटर्न है स्पेसिफिकली इन ब्राउन कल्चर, कि हमें बहुत ज्यादा आदत, हम कहते हैं कि हम उसको पाइल अप करते रहे अपने अंदर, ठीक है, और फिर वो जब, और उसकी हम प्रोजेक्शन करते रहते हैं, ठीक है, और हमें इस चीज का अंदाजा भी नहीं होता, ठीक है, नॉर्मली भी, इवन you never know, we too are the part of this thing. Exactly. ठीक है, तो वी हैव टू केटर दिस थिंग. जब हम एजुकेटेड भी हैं, हमें पता भी है, सोशल मीडिया हमारे हाथ में है, हम हर चीज सर्च कर सकते हैं, हम हर चीज पे रिसर्च कर सकते हैं. तो जब ये चीजें हैं, जितना टाइम हम कपड़ा देखने में लगाते हैं, जूता देखने में लगाते हैं, या कुछ भी करने में लगाते हैं, व्हाई नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू दीज थिंग्स. ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम बहुत बड़ी बना देते हैं. वी लाइक टू प्ले द स्नोबॉल इफेक्ट, ठीक है, जब वो बहुत बड़ा पहाड़ बनता है ना, फिर हमें दिखता है कि अच्छा अब ये हो गया है. सो दीज आर द रियली द स्मॉल थिंग्स जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, जिन पे बात करनी चाहिए, और जो हमें अपनी जात से पहले, सबसे पहले खुद से इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए. बिकॉज देयर इज नो बडी इन दिस वर्ल्ड हु इज नॉट ऑन फॉल्ट, ठीक है, हर किसी से गलती भी होती है, हर कोई नेगेटिव भी होता है, हर कोई पॉजिटिव भी होता है, बट वो लोग, उन लोगों से फर्क क्या होता है जो अच्छा कर रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, कि वो उसको अपने आप को अकाउंट करता है, ठीक है, दे एक्चुअली सेल्फ रिफ्लेक्ट इनटू देयर सेल्व्स. सो वी हैव टू सेल्फ रिफ्लेक्ट इन आवरसेल्फ, और हमें छोटी चीज से शुरू कर लेना चाहिए, हमें बड़ी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए. सही हो गया. सो दिस इज वन थिंग जो हम लाइफ के हर डोमेन में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट पर्टिकुलरली ट्रोलिंग के हवाले से, कि इसको अगर मैं थोड़ा स्पेसिफाई करूं, कि अगर हमें लग रहा है कि हमारे ही ग्रुप में या हमारे ही इर्द गिर्द किसी में ये टेंडेंसी है, जहाँ जो हम हंसी में उड़ा देते हैं या हंस देते हैं, और जस्ट इंजॉय अ मोमेंट, तो यही लोग होते हैं, ठीक है, जो फिर बड़ी चीज भी करते हैं. सो वी हैव टू मेक देम अकाउंटेबल उसी वक्त. अगर आपने हंस लिया, कोई बात नहीं, इसमें कोई मसला नहीं हो गया, बट डू से देम कि भाई इस तरह ऐसे बुरी बात है, इससे कोई हर्ट भी हो सकता है, ठीक है. सो दीज आर द लिटिल थिंग्स, हमें छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, फिर होपिंग
to make a big difference too on the community level and on the societal level. Yeah, इन्हीं steps से ही we can make a difference. Collective effort अगर सारी society मिलके करे. Yeah, Uh, definitely. for giving us so much of your time और इतना detail में इतने अच्छे से explaining everything to us. I'm sure a lot of people gained a lot of insightful knowledge today, and thank you so much for coming. Thank you so much for inviting me. All right. Thank you. It was a pleasure. It was our pleasure as well for having you over here with us. All right, so with this, we are going to end our today's session, and we'll be back with another topic next week. Till then, take care. Allah Hafiz. Okay, thank you. Hafiz.